Hello my dear students, welcome to this YouTube channel once again, and today we'll discuss about most important questions on the chapter atoms. You know, one of the most important chapter in modern physics, an easy chapter you can say. So in the last class, as you know, we have discussed some important questions on semiconductor materials and electronics devices, and different types of questions we have discussed, asked in a recent trend of CBSE. You know, in CBSE recently the questions are asked more or less in competency based questions. Okay, so we have designed in this way. Okay, so चलिए देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस क्या है. पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट मीन्स द सिलेबस, कंटेंट क्या है इस चैप्टर्स का. यू नो द कंटेंट इज वेरी इजी एज यू सी, बट द मेन प्रॉब्लम इज द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन. ओके, as you see the trend of the questions asked in CBSE at in last 2 years especially, so you can see the question patterns are different. Okay, so you have to prepare accordingly. So as you know the syllabus, there are very basic syllabus: alpha particle scattering experiment, Rutherford model, Bohr model of hydrogen atom, expression for radius, velocity and energy of electron in nth orbit, hydrogen like spectra, and qualitative treatment only, no mathematical derivation. So but the mathematical derivation of radius of nth possible orbit and velocity and energy of electron is important. Okay, so पहले हम डिस्कस करेंगे MCQ questions on these topics. Okay, so देखो what is the first MCQ questions here given. As you see here, when alpha particles are sent through a thin gold foil, most of them go straight through the foil because this is a very basic statement of Rutherford alpha particle scattering. You know कि the most of the space inside the atom is empty. This is why the most of the alpha particle goes straight. Okay, so the correct answer will be option C. Most of the part of an atom is empty space. Very easy question. Next, in an experiment of scattering of alpha particles, so for the first time that the atom has, मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम के जो पॉपुलर है, बट एक्चुअली द एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय गाइगर एंड मार्सडेन. ओके, so what Rutherford have done, Rutherford basically give the theoretical model. Okay, this is why it is called thought experiment, you know. So in this experiment, what was first conclusion? Most of the space of the atom is empty. So inside the atom there is a very little, a very small region you can say, where the total mass and charge of the positive charge of the atom is concentrated, and that is called nucleus. So in Rutherford experiment, एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया लग गया था, एंड एट द सेम टाइम अ न्यू साइंस वाज बोर्न, दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स. ओके, सो इट इज ऑब्वियसली द न्यूक्लियस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो, इन गाइगर्स मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, मतलब वो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ही बोल रहे हैं. In Geiger-Marsden experiment, the expression of distance of closest approach to the nucleus of alpha particle before it comes to momentarily at rest and reverse its direction is. Okay, so distance of closest approach, you know what is the distance of closest approach. So if suppose this is nucleus, this is atom, and one alpha particle is moving from here. So how much close the alpha particle will go to the nucleus? That is the least distance, it is the closest distance. So मान लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो है यहाँ तक गए हैं, फिर यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस? सो दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, यू नो. सो इफ वी टेक दिस एज आर, okay, so here is alpha particles, so momentarily the alpha particle will be rest here, so the velocity of the alpha particle will be 0, that means kinetic energy is 0. So if the kinetic energy, suppose the kinetic energy here, the kinetic energy of the alpha particle is half mv square initially, so this half mv square energy जो है it will be 0. दैट मीन्स इतना वर्क डन हो गया अगेंस्ट दिस न्यूक्लियस, है ना. क्योंकि देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जब इधर जाएगा तो एक रिपल्सिव फोर्स जो है ये फील करेगा, एंड ड्यू टू दैट रिपल्सिव फोर्स इसका जो काइनेटिक एनर्जी है इट विल डिक्रीजिंग, एंड हियर इट विल बी 0, एंड अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन इट विल टोटली कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो नाउ व्हाट इज द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस? यू नो द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज Jd, है ना, एंड द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2e. 2 इलेक्ट्रॉन है अल्फा पार्टिकल के पास, He42, यू नो ना, अल्फा पार्टिकल हीलियम 42. ओके, सो इसका जो number of atomic number है that is 2, so the total charge will be 2e and here Jd. So the repulsion force between 2e and Jd,
and due to this repulsion force here will be the positive potential energy, and that potential energy is equal to this kinetic energy, because this kinetic energy is converted into this potential energy. So what is this kinetic energy is half mv square, and that is equal to, you can see, we can write ki 2e into jd q1 q2 upon r into 1 by epsilon 0 4 by 1 by 4 by epsilon 0 into q1 q2 upon r होता है ना। तो इसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो k विल बी इक्वल टू, देखो, if this 2 and this cancel out, so it will be just z square upon 2 pi epsilon naught into r. So if r will be here, so you can write r equal to z square upon 2 pi epsilon naught k. So this is the closest distance between the nucleus and the alpha particle. Okay, so z square upon 2 pi epsilon naught k. So this is the correct answer. Okay, next, the angular momentum of the electron in the nth allowed orbit. Angular momentum, you know from the Bohr theory, the angular momentum L जो है that is nh by 2 pi, है ना। So if it is the nth orbit, then it will be nh by 2 pi. So this will be the correct answer. Next, in equation, what does this En equal to minus 13.6 upon n square electron negative sign indicates? What negative sign indicates? This is not new for you. I have told earlier in gravitation chapter also. Okay, कि टोटल एनर्जी जब नेगेटिव होता है सिस्टम का, इसका मतलब क्या है, वह एक अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट है. सो इट इज अ बाउंड सिस्टम. सो टोटल एनर्जी ऑफ अ बाउंड सिस्टम ऑलवेज विल बी नेगेटिव. सो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इज बाउंड विद द न्यूक्लियस. ओके, सो इट रिप्रेजेंट बाउंड सिस्टम. नेगेटिव एनर्जी रिप्रेजेंट बाउंड सिस्टम. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? देखो, हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस में जेडी नहीं होता है, ओनली ई होता है. न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है दैट इज प्लस ई, है ना, और इलेक्ट्रॉन जो है ये माइनस ई. अब दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर आर है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इससे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बताओ. काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी. और अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि एम वी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इधर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको अगर हम इक्वल करते हैं तो ये क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपन आर इक्वल टू क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर. सो Q1 जो है दैट इज ऑल्सो ई. सो ई इंटू ई अपन आर स्क्वायर, दैट मीन्स ई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर. सो यहाँ से आप हाफ एम वी स्क्वायर कर सकते हैं. इसको काट दीजिए और हाफ मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर अपन देखो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा. सो डायरेक्ट दिस इज काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी विल बी ई स्क्वायर अपन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ये याद रखना है. ओके, और अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोलते हैं तो ये तो बहुत सिंपल एक्सप्रेशन यू नो फ्रॉम योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कि इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपन आर होता है इसमें. तो ये हो जाता कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और इसमें नेगेटिव साइन को भी हमें इंक्लूड करते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी में. सो इट विल बी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाई आर. लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन अगर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेता तो इट विल बी नेगेटिव. ओके, एंड टोटल एनर्जी क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, दैट इज टोटल एनर्जी नेगेटिव होगा. अब देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम टू इट्स ग्राउंड स्टेट टू फास्ट एक्साइटेड स्टेट. तो सपोज दिस इज ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, n इक्वल टू 1 एंड दिस इज फास्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2. सो एनर्जी डिफरेंस जो है वही एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा एक्साइट करने के लिए. ये दोनों स्टेट का जो एनर्जी डिफरेंस है. अब बताओ एनर्जी एक्सप्रेशन क्या था, ई एन इक्वल टू माइनस फॉर हाइड्रोजन एटम, हाँ, माइनस 13.6 अपन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो E1 जो होगा दैट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E2 जो होगा दैट इज माइनस 13.6 अपन 2 स्क्वायर मतलब 4. सो ये होता है माइनस 3.4 होता है ना, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो टोटल कितना एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस जो है दैट इज E2 माइनस E1. सो E2 जो है दैट इज माइनस 13.4 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6. सो इट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, so C will be the correct answer. Clear? Next,
व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ एन एटम। तो देखो इसमें जो है जूल सेकंड में गिवन है, तो थर्ड ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होगा, देखो अभी एल इक्वल टू हमने क्या लिखा था, एन इंटू एच अपॉन 2 पाई, तो एन के जगह अगर हम 3 लिख देते हैं तो ये थर्ड ऑर्बिट बन जाएगा, सो इट विल बी 3h/2 पाई। इसका कैलकुलेशन कर लेना, मैं लिख देता हूँ, वैल्यू जो है याद भी रखना है, एच का वैल्यू कितना है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है ना, अपन 2 इंटू पाई, सो 2 इंटू 3.14, सो इसको अगर कैलकुलेट करोगे ना तो मिल जाएगा आंसर। ओके, सो यू कैन डू इट एनी। चलो नेक्स्ट, चलो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, यू कैन से दिस इज क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ये। If the electron in hydrogen atom is excited to n equal to 5 state, the number of different frequencies of radiation which may be emitted. So n equal to 5 state, देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ n equal to 1 है, this is n equal to 2, this is n equal to 3, this is n equal to 4 suppose है, this is n equal to 5। तो देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि 5 स्टेट में n equal to 5 स्टेट में एक्साइटेड है, तो नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, देखो अगर मान लो कि 5 से अगर 1 चला गया तो एक हो सकता है, 5 से अगर 2 चला गया एक हो सकता है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकलेगा, और फिर 5 से अगर 3 चला गया तो यहाँ भी हो सकता है, 5 से अगर 4 गया तो यहाँ भी हो सकता है ना। फिर देखो 4 से 3 हो सकता है, 4 से 2 हो सकता है, 4 से 1 हो सकता है, तो ऐसे कितना ऐसा लाइन होगा। तो ये बना बना के देखने का कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए फॉर्मूला है, क्योंकि देखो हमेशा क्या होता है, दोनों जो लेवल है दोनों के बीच में ये कॉम्बिनेशन होगा। 2 स्टेट्स चाहिए ना, एक रेडिएशन के लिए एटलीस्ट 2 स्टेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्साइटेशन डीएक्साइटेशन होगा 2 स्टेट के बीच में होगा हमेशा। इसका मतलब 5 अगर हमारे पास एलिमेंट है तो उसको दो कॉम्बिनेशन कैसे कर सकते हैं, मतलब हमारे पास मान लो कि 5 मार्बल्स है और डिफरेंट मार्बल ABCDE अगर हम बोल देते हैं, सेम जैसा नहीं है, तो दो कॉम्बिनेशन बनाना है, तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, NC2 है ना। सो दैट इज डायरेक्टली वी कैन राइट n इंटू n-1/2, ये NC2 होता है, दैट इज n इंटू n-1/2 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो ये इसके लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि देखो ये अगर 5 तक तो हम देख लेंगे फिर, लेकिन अगर 6, 7, 8, 9, 10 दे दिया तो बहुत सारा हो जाएगा ना, तो इसलिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। सो इसके लिए क्या होगा, 5 इंटू 5-1 मतलब 4/2, सो ये हो जाएगा 10, मतलब 10 ऐसा रेडिएशन का मतलब 10 लाइंस बनेगा इसमें। ओके, चलो नेक्स्ट, यू कैन डू इट ऑल्सो मैनुअली। अब देखो हम असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इसमें जो है ABCD ऑप्शन यू कैन सी हियर। ओके, यू नो दिस काइंड्स ऑफ ऑप्शंस, so we will discuss assertion reasoning type. So what is the first question? According to Bohr's theory, in the hydrogen atom the electron revolves in circular orbit, ये तो पक्की बात है, सही है। इसका रीजन क्या बोल रहे हैं, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये तो गलत लिख दिया, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होगा, ये तो गलत लिखा है, बस प्रिंटिंग मिस्टेक है, इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, सो इसका मतलब देखो assertion is also correct, reason is also correct and reason is the correct explanation of the assertion, so इसका मतलब ऑप्शन A is correct, क्योंकि देखो ऑप्शन A में ये था, देखो ये both assertion and reason are correct and the reason is correct explanation of the assertion। सेकेंड देखो ये both assertion and reason is correct but reason is not a correct explanation of the assertion, ये both assertion is correct but reason is both, if the assertion is correct but reason is incorrect, if both the assertion and reason are incorrect, तो इससे अकॉर्डिंग सोचना है। तो चलो नेक्स्ट, assertion क्या है, देखो द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय एन एटम इज रिलीज्ड टू द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन 2 एनर्जी लेवल्स, ये तो सही है कि 2 एनर्जी लेवल्स के बीच में जो एनर्जी है, जो एनर्जी डिफरेंस है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां डीएक्साइट हुआ तो जो एनर्जी ये रेडिएट करते हैं दैट इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस 2 स्टेट्स, जिसको हम h nu बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू E2 - E1। इसका रीजन क्या है, द एनर्जी ऑफ द फोटोन एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द 2 लेवल्स, ये तो सही है। तो दिस इज ऑल्सो
ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट, द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इज इट्स हाईएस्ट एनर्जी स्टेट, दिस इज रॉन्ग, हो ही नहीं सकता है। ग्राउंड स्टेट कैसे हाईएस्ट होगा, लोएस्ट होगा। इन द ग्राउंड स्टेट द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द फार्देस्ट पॉसिबल ऑर्बिट टू द न्यूक्लियस, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में जो होता है वो एकदम पास वाला जो ऑर्बिट होता है। तो दोनों इनकरेक्ट है, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट है ना। दोनों इनकरेक्ट कहाँ लिखा था, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट, असर्शन क्या है देखो, द बोर मॉडल ऑफ द एटम एक्सप्लेन्स द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये तो सही है। द एनर्जी लेवल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम आर क्वांटाइज्ड लीडिंग टू डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस, ये भी सही है, इसके वजह से होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो एक्सप्लेनेशन है वो तो बोर मॉडल से ही होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द हाइड्रोजन एटम क्वांटाइज्ड है ना, इसलिए तो हम बामर सीरीज, लीमैन सीरीज, पेसन सीरीज, अलग अलग सीरीज देखते हैं। सो ये भी ए होगा, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए बोर ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड, सही बात है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/4π, दोनों करेक्ट है। सो ऑप्शन ए होगा। चलो नेक्स्ट, द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट, द एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर यूनिक टू ईच एलिमेंट, नहीं ये तो गलत है। द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट, ये एलिमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। एमिशन स्पेक्ट्रम जो है ऑफ एन एलिमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट, द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर यूनिक टू ईच एलिमेंट, हाँ ये तो सही लग रहा है। द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट, ये तो सही है। द एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर यूनिक टू ईच एलिमेंट, हाँ वो भी सही है, क्योंकि देखो अलग अलग एटम के अंदर जो एनर्जी लेवल होता है वो अलग होता है, वो एक पर्टिकुलर एटम का जो है वो यूनिक होते हैं। तो द एमिशन स्पेक्ट्रम, देखो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, जब उसका अंदर का जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है न्यूक्लियस और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो इसका जो एक्साइटेशन और डीएक्स है, इसका जो एक्साइटेशन है बेसिकली, एक्साइटेशन में तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, जब ये डीएक्साइटेशन होते हैं, मान लो कि हायर एनर्जी स्टेट से ये लोअर एनर्जी स्टेट में आ गया, तब ये एनर्जी रेडिएट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं क्या, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो देखो ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम है ना, ये एमिशन स्पेक्ट्रम से स्पेक्ट्रम को स्टडी करके ही हम एक पर्टिकुलर एटम्स या फिर एक पर्टिकुलर सॉलिड का या फिर पर्टिकुलर जो मटेरियल्स होता है उसको हम स्टडी करते हैं, है ना, उसके अंदर प्रॉपर्टी कैसा हो हम कैसे स्टडी करते हैं, बाय यूजिंग एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम ऑब्वियसली ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ना एलिमेंट्स का। इसका रीजन क्या है, द एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर यूनिक टू ईच एलिमेंट, हाँ क्योंकि इस एलिमेंट के अंदर जैसा एनर्जी स्टेट होगा तो ये जैसे स्पेक्ट्रम देगा, कोई दूसरा एटम जो है अलग स्पेक्ट्रम देगा, तब ना ये हम डिफरेंस कर पाएंगे। तो ये तो सही है, दोनों सही है, तो ऑप्शन ए में हम जा सकते हैं। नेक्स्ट चलो, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इन द ग्राउंड स्टेट, ये तो सही है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज मेजर ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट, ये सही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स का है, प्रोटॉन्स का नहीं है। तो इसका मतलब असर्शन इज करेक्ट बट रीजन करेक्ट नहीं है। ओके, सो असर्शन करेक्ट नहीं है, असर्शन करेक्ट, लेकिन रीजन अगर करेक्ट नहीं है, रीजन इज नॉट करेक्ट, तो ये कहाँ था, रीजन इज इनकरेक्ट, असर्शन इज करेक्ट, तो सी होगा ना, हाँ तो इट विल बी सी, इट विल बी सी। सो ये सी होगा। चलो नेक्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड in an electronic transition is inversely proportional to the energy difference between the initial and final state, नहीं। अच्छा, the wavelength of light emitted in, wavelength बोल रहे हैं, wavelength of light emitted, हाँ ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के साथ ये क्या है, प्रोपोर्शनल है, इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। सो ये तो एनर्जी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो सही है। द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ, हाँ ये भी दोनों सही है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। The energy level in atoms are quantized due to wave nature of electrons. Yes, electrons exhibit both particle and wave properties. ये भी तो सही है। The energy level in an atom are quantized. हाँ, electrons exhibit, दोनों करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है एक्सप्लेनेशन नहीं है एक। ओके, सो इसका मतलब ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। क्लियर?
सो दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कैसे करना है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पासन सीरीज एंड बामार सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखो बामार सीरीज के लिए n कितना होता है, देखो दिस इज सपोज n इक्वल टू 1, दिस इज n इक्वल टू 2, दिस इज n इक्वल टू 3, यू नो, दिस इज n इक्वल टू 4 सपोज, एंड दिस इज n इक्वल टू 5 सपोज। तो जब 2 से 1 आते हैं या फिर 3 से 1 आते हैं तब इसको हम क्या बोलते हैं, लीमन सीरीज। जब 3 टू 2 आते हैं, फिर n 4 टू 2 आते हैं, या फिर 5 टू 2 आते हैं, तो ये क्या होता है, ये बामार सीरीज होता है। और पैसन सीरीज क्या है, जब 3 तक आएगा ना, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, तो इसको हम बोलते हैं पैसन सीरीज। आई थिंक यू नो दिस, पैसन सीरीज। तो बामार सीरीज के लिए क्या है, n इक्वल टू 2, पैसन के लिए क्या है, n इक्वल टू 3। ओके, और देखो वेवलेंथ का जो एक्सप्रेशन था 1 बाई लैम्डा, स्पेशली फॉर हाइड्रोजन एटम हम जेड नहीं लिखेंगे, तो r इक्वल टू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ओके, या फिर यहाँ n2 लिख देते हैं, ये 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर से 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब देखो n1 जो है, देखो n1 अगर 2 है तो ये बामार सीरीज हो गया। मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 बाई लेमडा इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ओके, मतलब ये कहां से आ रहे हैं उसको हम अलग मानेंगे। तो ये 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बामार सीरीज। ये हो गया बामार। लेकिन अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन 3 स्क्वायर, क्योंकि ये फिक्स्ड है, 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस जो अलग है, और जो है n2 स्क्वायर। n2 का मतलब क्या है, ये कुछ भी हो सकता है उसके ऊपर जितना भी ये लेवल है। तो ये हो गया, तब इसको हम बोलेंगे पैसन सीरीज, कॉरस्पॉन्डिंग जो लैम्डा है। ओके, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है, लैम्डा जो है सबसे कम होना चाहिए। तो लैम्डा कम कब होगा, जब एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। तो एनर्जी ज्यादा कब होगा, देखो एनर्जी जितना डिफरेंस ज्यादा होगा, तो डिफरेंस सबसे ज्यादा कब होगा, जब ये इनफाइनाइट होगा, n2 जब इनफाइनाइट होगा। सो n2 अगर इनफाइनाइट है तो यहाँ क्या होगा, देखो 1 बाई लेमडा, इसको हम पैसन सीरीज तो p बोलने हैं, इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, सो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, सो 1 अपॉन लेमडा p इज इक्वल टू r अपॉन 9। सो लेमडा p जो है दैट इज 9 अपॉन r। ये किसके लिए है, दिस इज फॉर पैसन सीरीज, ये होता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे कम। सिमिलरली यहाँ n2 इक्वल टू अगर 5 लिखते हैं तो ये हो जाएगा बामार सीरीज, सो दैट इज r इंटू 1 बाई 4, सो लेमडा बामार विल बी 4 बाई r। क्लियर, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट। और r का वैल्यू अगर गिवन है तो हम r का वैल्यू यहाँ लिख के इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। अगर ये देखो ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ना बोल के अगर ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बता देते हैं तो जो पहला है वही होता, क्योंकि देखो बामार सीरीज के लिए जो उसके ऊपर जो नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट है 3, तो ये सबसे कम एनर्जी है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा। सिमिलरली ये पैसन सीरीज के लिए n2 इक्वल टू 2 हो जाता, ये लीमन सीरीज के लिए, पैसन सीरीज के लिए 4 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर। चलो नेक्स्ट, इन द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच d0, ये तो हमने ऑलरेडी कर दिया। इफ अल्फा पार्टिकल इज रिप्लेस, अच्छा, इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर एन अल्फा पार्टिकल इज d0, ये गिवन है। इफ अल्फा पार्टिकल इज रिप्लेस्ड बाय अ प्रोटॉन, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इन कंपैरिजन टू अल्फा पार्टिकल विल इट रिक्वायर टू हैव द सेम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच d0। अच्छा, मतलब अल्फा यूज ना करके अगर हम इसको प्रोटॉन यूज करते हैं तो क्या होगा। तो जब अल्फा पार्टिकल यूज कर रहा था तब क्या हुआ था, देखो तो यहाँ था न्यूक्लियस, तो ऐसे अल्फा पार्टिकल, तो मान लो कि ये है अल्फा पार्टिकल, तो इसका जो था 2e और ये था Ze, ये हाइड्रोजन एटम तो नहीं है, नहीं ये जनरल एटम है, तो हम जेड ही मानेंगे। ओके, तो देखो इसका डिस्टेंस अगर r है ना, तो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमने अभी लिखा था, काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी का इक्वल होगा, सो इट विल बी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2z स्क्वायर स्क्वायर अपॉन r, 2z स्क्वायर अपॉन r। ओके, और r की जगह इन्होंने क्या बोल दिया d0, तो चलो इसको d0 लिख देते हैं।
d0। सो यहाँ से हम d0 निकाल सकते हैं क्या, 1/4πε0 इंटू 2z² अपन k। टू तो हम कंसिडर नहीं करेंगे अभी। उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, नाउ इसको हम प्रोटॉन से अगर रिप्लेस कर देते हैं तो 2e की जगह ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन के लिए ओनली e हो जाएगा ना, तो इन दैट केस e एंड जेडी होगा। देखो तो ये e हो जाएगा और ये जेडी हो जाएगा, और डिस्टेंस को सेम रखना है, d0 ही रखना है, सेम डिस्टेंस। तो काइनेटिक एनर्जी, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इन कंपैरिजन टू अल्फा पार्टिकल, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, के कितना होना चाहिए, इन दैट केस कितना गुना होना चाहिए, हम ये भी बोल सकते हैं। तो देखो इन दैट केस काइनेटिक एनर्जी को अगर हम के डैश से रिप्रेजेंट करते हैं तो के डैश कितना होगा, 1/4πε0 इंटू z²/d0, और यहाँ कितना था देखो 2z²। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सो 2 के डैश क्या होगा, 1/4πε0 इंटू 2z²/d0, और ये होता है k। सो 2 के डैश इक्वल टू k, इसका मतलब के डैश क्या होगा, k/2। तो काइनेटिक एनर्जी आधा होने में भी चल जाएगा पहले से, सेम डिस्टेंस ऑफ सेम क्लोजेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अगर आधा हो जाएगा फिर भी। ओके चलो नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ बोर्स रेडियस इन ग्राउंड स्टेट एंड फास्ट एक्साइटेड स्टेट। देखो बोर रेडियस कितना था, इसका हाइड्रोजन एटम के लिए Rn जो था दिस इज प्रोपोर्शनल टू n², यू नो। तो और इसका जो कांस्टेंट है हम इसको a0 लिख सकते हैं, दैट इज फास्ट ऑर्बिट का a0 n² था ना। अब देखो रेशियो निकालना है कहाँ कहाँ, ग्राउंड स्टेट एंड फास्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट के लिए R1 होता है, फास्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए R2 होता है। तो ये हो जाएगा a0 इंटू 1 अपन a0 इंटू 2², सो इट विल बी 1/4। इसका मतलब R1 इज टू R2 जो होगा, जो रेशियो जो है दैट इज 1:4। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन से। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। ओके ये गिवन है, ग्राउंड स्टेट का जो है दैट इज E1 इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट डज द नेगेटिव साइन सिग्निफाई, ये तो पहले हमने बता दिया। नेगेटिव से क्या सिग्निफाई करते हैं कि इट इज ए बाउंड सिस्टम, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस। नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस। ओके नेक्स्ट देखो, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन इन दिस एटम फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द फास्ट एक्साइटेड स्टेट। ये भी कर लिया कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी और फास्ट एक्साइटेड का एनर्जी, ग्राउंड स्टेट क्या होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या होता है -13.4, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी किया है एक MCQ क्वेश्चन में, है ना, तो ये भी आ गया। तो देखो दोनों क्वेश्चन हो गया, पहले से कर लिया। नेक्स्ट, यूज रीडबर्ग फॉर्मूला टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ H अल्फा एंड H बीटा लाइन। देखो H अल्फा H बीटा क्या होता है, ये बेसिकली अगर हम लिमन सीरीज का बात करते हैं ना, लिमन सीरीज H अल्फा H बीटा, यूज रीडबर्ग फॉर्मूला टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ H अल्फा एंड H बीटा लाइन, गिवन है रीडबर्ग कांस्टेंट इज दिस, रीडबर्ग कांस्टेंट गिवन है H अल्फा एंड H बीटा लाइन का बताना है। तो H अल्फा H बीटा लाइन क्या है बेसिकली, देखो तो ये अगर हम n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट को मानते हैं, दिस इज सपोज n इक्वल टू 2, दिस इज सपोज n इक्वल टू 3, तो इसमें क्या होगा देखो 2 इक्वल टू 1 से आएगा ना, 2 to 1 से आएगा, जो ये जो देगा इसको हम बोलेंगे H अल्फा। फिर मान लो कि 3 से जो आएगा ये जो देगा रेडिएशन, इसको हम बोलेंगे H बीटा। ओके तो H अल्फा लाइन क्या है, मतलब लिमन सीरीज का जो अलग अलग पार्ट है, मतलब देखो एक सीरीज जब हम बोल रहे हैं ना उसमें भी तो बहुत सारा लाइन है ना, तो इसके लिए एक लाइन को अगर H अल्फा बोलते हैं तो दूसरा को हम H बीटा बोलेंगे। ओके तो इसमें देखो तो इसका मतलब H अल्फा का वेवलेंथ क्या होगा, देखो 1/λ इंटू ये कहाँ से आ रहे हैं 1 तक आ रहे हैं तो 1/1² माइनस ये कहाँ से आ रहे हैं 2 से आ रहे हैं तो 1/2² होगा। सो दिस इज लैम्डा अल्फा हम बोल सकते हैं। सिमिलरली लैम्डा बीटा क्या होगा, देखो ये कहाँ से आ रहे हैं 3 से आ रहे हैं तो 1/1² माइनस 1/3²। क्लियर, तो इसमें देखो 1 - 1/4 होगा, R इंटू होगा ऑब्वियसली, तो ये होगा देखो R इंटू 1 - 1/4, इसका मतलब 3R/4, और इसमें आ रहे हैं देखो 1 - 1/9, इसका मतलब 8R/9। सो हम लिख सकते हैं लैम्डा बीटा जो होगा दैट इज 9/8R, इसके बाद R का वैल्यू लिख लेना, और यहाँ जो होगा देखो लैम्डा अल्फा दैट इज 4/3R, इसके बाद R का वैल्यू यहाँ लिख देना, फिर कैलकुलेशन करने में आ जाएगा। क्लियर, तो ऐसे हम कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट,
कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल्स, सॉरी, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड इन बामर सीरीज। तो बामर सीरीज में शॉर्टेस्ट क्या होगा, वही सेम बामर सीरीज के लिए एन क्या होता है, ये एन जो है 2 होगा, और ये कहाँ से आएगा, इनफाइनाइट से आएगा, तब ना ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा, एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, तब ये क्या होगा लैम्डा। सो 1/λ जो शॉर्टेस्ट होगा दैट इज r इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट। ओके, सो 1/इनफाइनाइट इज 0, सो r इंटू 1/4, 1/λ इक्वल टू, सो λ इक्वल टू 4/r, ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। फिर r का वैल्यू अगर आप लिख दोगे तो आ जाएगा, मतलब 4 इंटू 10⁻⁷ होगा, नीचे अगर 10⁻⁷ लिखोगे तो। नेक्स्ट देखो, when an electron in hydrogen atom jumps from the third excited state to the ground state, कहाँ से कहाँ, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 2, यहाँ है n इज इक्वल टू 1, सो थर्ड से 1 जंप किया है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी होगा, दैट एनर्जी इज h न्यू। हाउ वुड बी द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एनर्जी। तो देखो इसके लिए जो एनर्जी होगा, और इसको अगर हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं तो इट विल बी hc/λ, सो यहाँ से जो लैम्डा है वही डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा। अब देखो ये एनर्जी कितना होगा, ये एनर्जी डिफरेंस पता है, तो एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, देखो ये जो एनर्जी डिफरेंस है E3 माइनस E1, अब बताओ En क्या होता है, -13.6/n², मतलब n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो E1 हो जाएगा सिंपल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E3 क्या होगा देखो -13.6/9, सो ये होता है -1.81 या फिर 51 होगा, 1 देख लेते हैं एक बार, कैलकुलेटर तो था यहाँ, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आई थिंक इट विल बी 1.51, देख लेते हैं, 13.6 डिवाइड बाई 1/9, हाँ -1.51, तो ये हो गया -1.51, इसके बाद होगा 0.85, ओके ठीक है। तो ये आ गया इन दोनों के E1 एंड E3 के बीच में, तो इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस होगा कितना होगा, -13 मतलब E3 माइनस E1, सो एनर्जी डिफरेंस अगर हम डेल्टा E करते हैं तो इट विल बी E3 माइनस E1, सो अगर हम E3 माइनस E1 करते हैं तो E3 विल बी -1.51 माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा, मतलब 13.6 से अगर हम 1.51 इसको हम करते हैं तो 902, तो 12.09, तो ये बन जाएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। ये 13.60 मान लेते हैं और 51, तो 09 ही होगा, 12.09। अब देखिए 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लैम्डा कैसे निकालोगे, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा कैसे निकालोगे, क्योंकि hc/λ इक्वल टू क्या होता है, देखो ये जो डेल्टा ई, सो डेल्टा ई इक्वल टू h न्यू एंड दिस इज hc/λ, तो यहाँ से अगर लैम्डा निकालना है दैट विल बी hc/ΔE, और मैंने ये बताया था कि एनर्जी डिफरेंस ये अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये एनर्जी, तो hc को अगर हम 12400 लिखते हैं, ओके देन मतलब hc का वैल्यू अगर हम 12400 लिखते हैं, और E जो है उसको अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं तो ये किस में आएगा, डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, सो लैम्डा इज इक्वल टू दिस एंगस्ट्रॉम, सो ये डायरेक्ट आ जाएगा, इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने बहुत बार बताया था, सो 12400 अपन जो है 12.09, ओके, सो ये आ रहे हैं 1025.6 एंगस्ट्रॉम, ये आ जाएगा 1025.6 एंगस्ट्रॉम, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या बोल रहे हैं, जस्टिफाई योर आंसर, ऐसा क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, जब इलेक्ट्रॉन वहां से यहाँ आ रहे हैं तो जस्ट इलेक्ट्रॉन हैव अ वेव प्रॉपर्टी, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी है वही एनर्जी जो है, वही इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम सेम पोटेंशियल से, सेम एनर्जी से अगर हम उसको मूव करवाते हैं तो उसका जो वेवलेंथ होगा कॉरेस्पॉन्डिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा दैट विल बी सेम फॉर दिस। ये बेसिकली क्या है, देखो ये डी एक्साइटेशन एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन जब वहां से वहां डी एक्साइट कर रहे हैं तब कितना एनर्जी निकल रहे हैं, एंड दैट एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो लैम्डा है ना, सो दैट लैम्डा वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर, एंड वही लैम्डा जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ भी है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का
वेव पार्टिकल एंड वेव पार्टिकल डुअलिटी है। तो जब सेम इलेक्ट्रॉन को हम मूव करवाएंगे विथ एन सर्टेन स्पीड, दैट स्पीड should be gained from this amount of energy, then the wavelength of that electron and this wavelength will be same. Okay, so this is why we can say कि this is the de Broglie wavelength. अब देखो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। राइट टू इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस फॉर रदरफोर्ड मॉडल व्हिच कुड नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड फीचर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा, however this explained in Bohr's model of hydrogen atom. use the Rydberg formula to calculate the wavelength of H alpha line. H alpha line को तो हम कैलकुलेट पहले ही कर दिया, वो तो कर सकते हो। अब देखो ये रदरफोर्ड मॉडल का दो ऑब्जर्वेशन क्या है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था रदरफोर्ड मॉडल का कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होगा, ये रिवॉल्व करेगा। ओके, टू इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, अच्छा रदरफोर्ड का लिमिटेशन बोल रहे हैं, सॉरी। हाँ, तो लिमिटेशन ये भी एक लिमिटेशन है रदरफोर्ड का, ये तो स्टेटमेंट नहीं है, लिमिटेशन। तो लिमिटेशन क्या था, पहले रदरफोर्ड बोला था तो सर्कुलर ऑर्बिट में जाएगा, लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट में अगर ये गया तो इलेक्ट्रॉन जो है देखो ये ऐसे जब मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक क्लासिकल पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन्स को एक चार्ज पार्टिकल, क्लासिकल चार्ज पार्टिकल माना था। तो इलेक्ट्रॉन जब ऐसे मूव करेगा तो ये एक्सीलरेटेड होगा। तो जब एक्सीलरेटेड होता है तो एनर्जी रेडिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। की चार्ज पार्टिकल हमेशा जब एक्सीलरेटेड होता है तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब यहाँ से निकलेगा तो इसका एनर्जी जो है खत्म हो जाएगा। तो एनर्जी धीरे धीरे खत्म होते 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 एक टाइम क्या होगी, स्पाइरल पाथ में ये आकर न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो स्टेबिलिटी है दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द रदरफोर्ड मॉडल। सो ये फर्स्ट लिमिटेशन है। अब सेकंड लिमिटेशन क्या है बताओ। सेकंड लिमिटेशन जो है दैट इज हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम है, कि देखो अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ऐसे 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 कमेगा तो ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये जो एनर्जी रेडिएट करेगा दैट शुड आल्सो बी कंटिन्यूअस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। क्योंकि देखो ये ऐसे कंटिन्यूअसली ये डिक्रीज हो रहा है रेडियस, है ना, तो इसमें क्या होगा, कंटिन्यूअसली एनर्जी इसमें रेडिएट होना चाहिए था। लेकिन हाइड्रोजन एटम को जब हम एग्जामिन करते हैं तो उसमें लाइन स्पेक्ट्रा दिखाई देते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं दिखाई देते हैं। सो द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ऑल्सो cannot be explained by this Rutherford model. So there are two limitations of the Rutherford model. Now ये दो जो लिमिटेशन है इसको कैसे बोर मॉडल में इसको एक्सप्लेन किया गया था, क्योंकि हाउ और दिस एक्सप्लेन इन बोर्स मॉडल, देखो ये क्वेश्चन है। तो बोर मॉडल में क्या बताया गया, इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कंप्लीटली क्लासिकल पार्टिकल नहीं है, ये सेमी क्लासिकल पार्टिकल है। तो अगर ये सेमी क्लासिकल पार्टिकल है तो इसका जो एनर्जी है ना ऐसे कंटिन्यूअसली डिक्रीज नहीं होगा, वो तब इंक्रीज और डिक्रीज होगा, या फिर वो जब डीएक्साइटेशन या फिर एक्साइटेशन होगा। मतलब हो सकता है ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या फिर रेडिएट करेगा। कब करेगा, जब ये हायर स्टेट में लोअर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तब एनर्जी रेडिएट होगा, जब लोअर से हायर जाएगा तब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। इसलिए एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसका एनर्जी जो रेस्ट में रहेगा, दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, यू नो। एंड सेकेंड थिंग जो है, ये जब डीएक्साइट होते हैं हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी तब ये रेडिएशन देते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर रेडिएशन हो गया। फिर जब दूसरा हायर स्टेट से आएगा तब ये देते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे हमने देखा है ना लीमन सीरीज, बामार सीरीज। तो इसमें क्या, अगर ये n=1 है तो 2 से आएगा तो एक लाइन मिलेगा, फिर 3 से आएगा तो अदर लाइन मिलेगा, तो ये अलग अलग लाइन मिलेगा। तो ये जो लाइन स्पेक्ट्रम का जो कॉन्सेप्ट था ये रिजॉल्व हो गया, एंड इट कैन बी एक्सप्लेन बाई दैट थ्योरी, दैट फॉर्मूला ऑब्वियसली 1/λ = r × 1/n² minus n1² minus 1/n2². Okay, so I think you can understand how you can write these things. Now the actual language you have to write. Okay, I think you have the sources, from here you can write this to explanation. The understanding is more important. Chलिए next. Calculate the shortest wavelength in the Balmer series of hydrogen atom. In which region of hydrogen spectrum does this wavelength lie? देखो ये तो फास्ट पोर्शन जो है ये तो कैलकुलेट कर लोगे तुम लोग, ये बहुत ही आसान है। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बामा सीरीज अभी किया था। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बामा सीरीज में क्या हो रहा है, 1/λ = r × 1/2² minus 1/∞। सो इसमें जो हो रहा है 1/λ = r/4। सो लैम्डा हो रहा है 4/r, और r को अगर हम 10⁻⁻7 लिखते हैं तो r × 4 × 10⁻⁷ मीटर। और यू नो दिस इज विजिबल लाइट। बामार सीरीज इज ओनली सीरीज है ना विच गिव द विजिबल लाइट। सो ये विजिबल रेंज में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है, ये विजिबल में है।
Okay, Balmer series. Show that the radius of the orbit in hydrogen atom varies n square, where n is the principal quantum number. I think you can do it. This is a very basic theory based question. You can see in your copy also. Okay, and you can see in your class notes also, your books also. Okay, otherwise I can do it very easily. चलो कर ही देते हैं. सपोज मान लो कि यहाँ जेडी है प्लस जेडी और ये है इसका रेडियस आर, है ना. अभी क्या था, तो यहाँ अगर ये वी स्पीड से चल रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं बताओ. इसमें जस्ट दो फॉर्मूला यूज करना है. एक होता है क्या है एम वी स्क्वायर अपन आर जो सेंटीमीटर फोर्स है, एंड दैट इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, है ना. यहाँ से रेडियस निकालना है तो देखो इसको हम कम करते हैं. यहाँ अगर आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आर इधर आ जाएगा. सो एम वी स्क्वायर अपन इंटू आर इक्वल टू जेड स्क्वायर अपन 4 एप्सिलॉन नॉट. अब क्या करते हैं, एक आर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक एम से मल्टीप्लाई करते हैं. एम हो जाएगी आर हो जाएगा, तो यहाँ भी एम आर हो जाएगा. तो एम वी आर का मतलब क्या है, एन एच अपन 2 एम वी आर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम. सो एन एच अपन 2 होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू जेड स्क्वायर एम आर अपन 4 एप्सिलॉन नॉट. ओके, अब देखो आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर हो गया, है ना. इसको थोड़ा सा ठीक से लिख दोगे तो हो जाएगा. एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन 4 स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर एम आर अपन 4 एप्सिलॉन नॉट. अब देखो यहाँ अगर आप ऐसे आर को लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो. तो आर क्या होगा देखो 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन 4 स्क्वायर एम जेड स्क्वायर. ओके, सो दिस इज व्हाई यू कैन राइट आर एन आर जो है ये प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. तो ऐसे इसको इजीली प्रूव कर सकते हो. इसको थोड़ा सा ठीक से लिख के ओके विथ लैंग्वेज इसको कंप्लीट करना है. सो यू कैन सी इन योर नोटबुक ऑल्सो एंड इन बुक ऑल्सो. ओके, अब देखो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन फिर भी आ गया. An alpha particle moving with initial kinetic energy k towards a nucleus of atomic number z approaches a distance d at which it reverses direction. Obtain the expression of distance of closest d approach d in terms of the kinetic energy. ये अभी लिखा था kinetic energy क्या हुआ था 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू 2e इंटू जे डी, है ना, अपन आर. तो इसको अगर इन टर्म्स ऑफ के लिखना है, ये आर ही डी है ना, तो इसको इन टर्म्स ऑफ के लिखना है तो डी को इधर लिख दो. सो वन ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि पहले कर दिया. तो 2z स्क्वायर अपन डी के. सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी यू कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ओके, नेक्स्ट देखो यूजिंग रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम. ये रदरफोर्ड मॉडल नहीं है, ये होना चाहिए था बोर मॉडल. डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम. व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ द टोटल एनर्जी नेगेटिव एनर्जी. अगेन नेगेटिव एनर्जी क्या होता है, बाइंड सिस्टम को बताते हैं. और इसका जो टोटल एनर्जी यू कैन फाइंड आउट. टोटल एनर्जी देखो मैंने ये ऑलरेडी कर दिया, देखोगे कहाँ कर दिया था ये. I can show you. अभी कहाँ ये किया था एक बार, है ना. ये नहीं है. टोटल एनर्जी जब निकाल रहे थे हम एमसीक्यू में किया था शायद, ये वाला देखो. इसमें देखो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी. तो टोटल एनर्जी क्या होगा, दोनों का शाम हो जाएगा, है ना. तो टोटल एनर्जी क्या होगा देखो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना. सो देखो काइनेटिक एनर्जी कितना है, इसको ऐसे लिख देते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मेट में इंटू क्या होगा इस स्क्वायर अपन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r. और पोटेंशियल एनर्जी के स्क्वायर अपन आर है, तो ये हाफ है और यहाँ -1 है. तो दोनों अगर हम ऐड करेंगे तो ये होगा -1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्क्वायर अपन 4 एप्सिलॉन नॉट आर. ओके, तो ये हो जाएगा ऐसे -1/2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्क्वायर अपन 2r. सो ये होता है टोटल एनर्जी. और टोटल एनर्जी नेगेटिव आते हैं, और टोटल एनर्जी नेगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है, बाइंडिंग सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस. ओके, सो देखो ये बहुत ही इजी सेम टॉपिक से है, बार बार आ रहे हैं ना. तो मतलब ये चैप्टर जो है बहुत इजी चैप्टर है. इसमें जो है सेम थिंग जो है बार बार रिपीट हो रहा है, बस कॉन्सेप्ट को इधर उधर करके करना है. ओके,
अब देखो कि क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स ए फोटोन व्हिच एक्साइटेड टू द n इक्वल टू 4 लेवल डिटरमाइन द वेवलेंथ सेम, n इक्वल टू अगर 4 है तो वेवलेंथ निकालना है, सो इट इज n इक्वल टू 1, इट इज n इक्वल टू 4। और इसमें क्या है, हाइड्रोजन एटम का ही बात कर रहे हैं, तो ई एन इक्वल टू कितना होगा, देखो -13.6 अपन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें क्या करना है, बस n इक्वल टू 1 मतलब E1 निकालना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और E4 निकालना है, क्या होगा -13.6 अपन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब क्या करना है, इसको E4 माइनस E1 करना है, तो E4 माइनस जब E1 करोगे तब डेल्टा ई मिल जाएगा, सो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, एच न्यू, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा, तो इसमें देखो एच न्यू है, तो इसको अगर हम लिखोगे एच सी अपन लेमडा हो जाएगा डेल्टा ई इक्वल टू, तो यहाँ से लेमडा क्या मिलेगा, एच सी अपन डेल्टा ई, सो डेल्टा ई अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो 12400 अपन डेल्टा ई करोगे तो ये डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। क्लियर। द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, या तो डिटरमाइन द रेडियस इन एन ऑर्बिट, ये भी बहुत ईजी है, मतलब A0 इज गिवन हियर, तो n इक्वल टू 4, तो आर एन क्या होता है इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर, है ना, तो यहाँ ए नॉट अगर ये है तो 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 4 स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा दिस। आई थिंक यू कैन डू इट। नेक्स्ट देखो, इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम सेकंड स्टेट टू फर्स्ट स्टेट देन टू द ग्राउंड स्टेट। ओके, आइडेंटिफाई द स्पेक्ट्रल सीरीज टू व्हिच दिस ट्रांजिशन बिलोंग्स। अच्छा, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन इन द टू केसेस। अच्छा देखो, पहले 3 स्टेट बोल रहा है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एंड देन ग्राउंड स्टेट, तो इसको हम ऐसे मान सकते हैं n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, तो दिस इज ग्राउंड स्टेट, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ओके, तो देखो ग्राउंड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम एंड ट्रांजिशन फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो या एंड देन टू ग्राउंड स्टेट, तो यहाँ से यहाँ। आइडेंटिफाई द स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज क्या है, 3 से जब 2 होता है तो ये होगा बामा सीरीज, और ये क्या होगा, ये होगा लीमन सीरीज। बस अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ, तो वेवलेंथ कैसे निकालोगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, E3 माइनस E2 निकालना है, पहले ये निकालोगे डेल्टा ई, फिर इसको क्या करोगे एच सी अपन लेमडा, फिर लेमडा कैसे निकालोगे, सेम एच सी अपन डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालोगे, तो ये 12400 अपन डेल्टा ई एंगस्ट्रॉम हो जाएगा डायरेक्ट। सिमिलरली देखो 2 एंड 1 के बीच में जब करोगे डेल्टा ई, तो ये हो जाएगी E2 माइनस E1 इक्वल टू एच सी अपन लेमडा, सो लेमडा क्या होगा एच सी अपन डेल्टा ई 12400 अपन डेल्टा ई, ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो डेल्टा ई जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, क्योंकि ई का जो एक्सप्रेशन है हमने करके रखा है ना, दैट इज -13.6 अपन एन स्क्वायर भी, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिख के रखा है ना, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। क्लियर। सो पूरा चैप्टर जो है डिस्कशन कर दिया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन हो सकता है इससे, आई थिंक यू कैन रिवाइज दिस क्वेश्चंस वेरी इजीली एंड यू कैन सी द टॉपिक्स आर सेम, ऑलमोस्ट सेम, मतलब क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम, घुमा फिरा कर सेम दे रहे हैं। ओके, so in the next class we will discuss about the nucleus, atomic nucleus. Okay, thank you.